Assalamu alaikum everyone, hope you're doing well. So in today's class, I'll explain you one complete paper, and this is AS Economics paper 1 in variant 1.3. The scheme is you can stop the video, read the question carefully and try to figure out the correct answer and then look into the explanation that I'll provide you. Furthermore, if you want to purchase my study material, then you can go to the description and find a link there. All of my study material is in that link and you can place your order and get your books accordingly. And now let's begin the paper. Okay, so this is the exam paper you can see on your screen right now. You can stop the video, read the question carefully, and then look into the explanation. The first question is, a factory introduces an automated production line to take advantage of division of labor. What is most likely to increase? Right? So division of labor is when one person performs one task as per his specialization. And definitely when people do job as per their specialization, then their productivity increases. So as per this question, answer is part D, and workers' productivity will increase. So examiner is asking what is most likely to increase. So productivity will increase. Productivity refers to the efficiency of worker or output per worker. So जब लोग specialized होंगे तो ज़ाहिर है वो ज़्यादा efficient और productive हो जाते हैं. बाकी options क्यों नहीं हो सकती? Average cost of production यानी examiner कह रहे हैं कि what will increase? So average cost of production will not increase, rather it will decrease because specialized people reduce waste. Job satisfaction of workers will increase. ये थोड़ा सा misguiding लगता है. बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन को चूज कर लेते हैं इस ऑप्शन को, पार्ट बी को. जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ वर्कर्स डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से ज़रूरी नहीं इंक्रीज करे, मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिक्रीज भी कर जाती है. तो इसलिए हम इसको चूज नहीं करेंगे. क्यों डिक्रीज कर जाती है? क्योंकि मोनोटनेस को कॉज करती है. व्हेन यू रिपीटेडली डू द सेम थिंग देन इट डेफिनेटली रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी ऑफ, reduces satisfaction of the workers. ज़्यादा बोर हो जाते हैं लोग एक काम कर करके. रेंज ऑफ स्किल ऑफ ईच वर्कर, ये इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि रेंज ऑफ स्किल का मतलब होता है कि कितनी कितनी टाइप की काम आप कर सकते हैं. सो व्हेन यू आर स्पेशलाइज्ड एज पर डिवीजन ऑफ लेबर, यू आर डूइंग वन टास्क, नॉट द रेंज ऑफ टास्क. सो रेंज ऑफ स्किल्स आपको नहीं मिलती, रादर आप एक ही स्किल पे काम कर रहे होते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं. And question number 2 says consumers do not use enough of a product to maximize their private benefit because they have imperfect information about the product. How would an economist classify this product? जी अब देखें, एक मेन चीज ध्यान में रख लें. जब भी वो अंडर प्रोडक्शन अंडर कंजम्पशन की बात करें, इट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट मैरिड गुड्स. अंडर प्रोडक्शन अंडर कंजम्पशन जो है ये बेसिकली मैरिड गुड का फीचर होता है. ओवर प्रोडक्शन ओवर कंजम्पशन डीमेरिट गुड का फीचर होता है. सो यहाँ पे एग्जामिनर इज सेइंग कि कंज्यूमर्स डू नॉट यूज एनफ ऑफ द प्रोडक्ट टू मैक्सिमाइज देयर प्राइवेट बेनिफिट. Means they don't basically have the information about the product, how useful that product is for them. So this is the feature of merit goods. So merit goods are the goods that are beneficial to the consumers as well as the overall society, and generally people don't perceive the true benefits of these goods, so they under consume them. So C is clear cut answer, other information is not correct. अगर ओवर प्रोडक्शन ओवर कंजम्पशन की बात करता है तो डीमेरिट गुड्स होता है. फ्री गुड्स क्यों नहीं है? फ्री गुड्स वो होती हैं जो गॉड गिफ्टेड होती हैं, जैसे सनलाइट, फ्रेश एयर, ठीक है, तो वाटर फ्रॉम रिवर, ये ऐसी चीज़ें जो फ्री गुड्स होती हैं, उनकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती. Okay, so next question number 3. This question caused a lot of trouble for many students, and I'll try to make it as simple as possible. The table shows different combinations of rings and bracelets that can be purchased by Luke and Zoe in the same time period. Okay, so these are the combinations of Luke and these are the combination of Zoe. Which statement is not correct? It means all other statements are correct. There is one statement that is not correct. So
Option D is the correct answer for this question because option D is not correct as per this table. Zoe, opportunity cost for each bracelet is 2 rings. तो ये बात सही नहीं है. This is not correct. क्यों नहीं है हम देख लेते हैं. देखिए, for example, if Zoe increases production of purchases more bracelet from 0 to 8, it means to get 8 bracelets, Zoe sacrifices 4 rings, right? So it could have purchased 20 if nothing of bracelets were purchased, but if Zoe purchases 8 bracelets, then uh, Zoe has to basically sacrifice 4 rings. And for next 8, from 8 to 16, 8 extra bracelets, Zoe sacrifices like again 4 rings, and for another extra 8, again 4 are sacrificed. So now if we find the ratio of bracelet to ring, then for each 8 units of bracelet, Zoe sacrifices 4 units of rings. So we if we make bracelet 1, so we will have to divide it by 8, and we have to divide it by 8 as well. So 8 over 8 is equal to 1. So 1 bracelet equal to 0.5 rings, half ring. So this is not basically correct option because Zoe opportunity cost of each bracelet is 2 rings. It is not 2 rings, rather one bracelet equal to 0.5 rings. तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो एग्जामिनर ने कहा है कि कौन सी ऑप्शन सही नहीं है, तो डी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि एक ब्रेसलेट के अगेंस्ट एग्जामिनर इज सेइंग कि 2 रिंग्स उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. 1 ब्रेसलेट के अगेंस्ट उसे हाफ रिंग शो सेक्रीफाइस करना पड़ रही है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसकी. बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं हो सकती उनको हम देख लेते हैं. वैसे तो अगर हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करते जाएंगे टाइम बहुत लग जाएगा. आई सजेस्ट कि अगर आप चैट में लिख दें अगर आपको कोई इसमें फर्दर इशू हो, तो बाकी ऑप्शंस को मैं डिस्कस कर लूँगा. लेकिन कोई एक ऑप्शन में और भी डिस्कस कर लेते हैं तो ताकि आपको समझ आ जाए कि हाउ टू फिगर इट आउट. एक और ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको इसकी लाइक समझ आ जाए. ऑप्शन ए को मैं डिस्कस कर लेता हूँ. Luke has a larger opportunity cost than Zoe for making bracelet. देखिए, जोई ब्रेसलेट बनाने के लिए 8 ब्रेसलेट बनाने के लिए इसको 4 रिंग सेक्रीफाइस करना पड़ती है. ठीक है, अगेन ये बाकी मैंने ऑलरेडी बता दिया था, हर दफ़ा 8 के लिए 4 सेक्रीफाइस करना पड़े. सो इन केस ऑफ लूक व्हाट हैपेंस इज कि फॉर 6 additional bracelet, Luke has to sacrifice 6 rings, right? And for another 6 additional bracelets from 6 to 12, Loki sacrifices again 6 rings. So it means that Luke has a larger opportunity cost because Luke sacrifices more for lesser bracelets and Zoe sacrifices less for more bracelets. So option A is correct answer. So examiner is saying what is not correct. So this is correct. So we cannot choose this option. So you can like look into other options as well. Similarly, the opportunity cost of producing rings is constant for both Luke and Zoe. So opportunity cost is definitely constant for every additional 8 bracelet. It is sacrificing, Zoe is sacrificing 4 rings, and for every additional, so opportunity cost is constant. And in this case, again, we can see that for every additional 6 bracelets, Luke sacrifices 6 rings. So again, opportunity cost is constant. So this is also correct answer because opportunity cost is constant and we have to choose the option that is not correct. ठीक है, सो आपको वो ऑप्शन ढूंढनी है जो करेक्ट ना हो. ऑप्शन ए भी करेक्ट थी, बी भी करेक्ट थी, सी भी करेक्ट थी. ऑप्शन डी करेक्ट नहीं थी, इसलिए हम डी को चूज कर लेंगे. अगेन अगर कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो फर्दर तो आप फिर से चैट में लिख दें. आई ट्राई टू लेट यू नो फर्दर एक्सप्लेनेशन. व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ फ्री गुड. फ्री गुड्स ऐसी होती हैं जो गॉड गिफ्टेड होती हैं, जैसे फ्रेश एयर, सनलाइट, और ये लिमिटेड इन सप्लाई नहीं होती, स्केर्स नहीं होती.
rather they are available free of cost और इनकी कोई markets भी नहीं होती. So option D is the correct answer. Anything that provides free utility but is not scarce. Limited नहीं है और utility भी like provide करती है. जैसे सनलाइट की बात कर लें, सनलाइट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है और उसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है और उसकी यूटिलिटी भी है, ज़ाहिर है सन की हमें ज़रूरत होती है. ऑल अदर ऑप्शंस आर मैन मेड, human made things, so they are not free goods. Okay, so question number 5 says the diagram shows the market for computers in Pakistan. Which area represents consumer surplus and consumer expenditure? Keep in mind, consumer surplus is the area above equilibrium price and below demand curve. So this triangle is consumer surplus, right? So this is consumer surplus. So consumer surplus अगर हम देखना चाहें तो option A है WXY. So this is correct answer. This is correct answer WXY. So option A and B can be correct. So now we have to look into the consumer expenditure. Consumer expenditure या revenue find करने का formula होता है price into quantity. So total expenditure is equal to price into quantity. यहाँ पे price हमारे पास क्या है? Equilibrium price is X, इतनी price है और quantity कितनी है? OZ. ये आपके पास height है, ये base है. Height into base करेंगे यानी price into quantity करेंगे तो ये आपके पास ओवरऑल ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये वाला पूरा एरिया ओ एक्स वाई जी. ठीक है, सो ओ एक्स वाई जी हमें यहाँ पे नजर आ गया ऑप्शन बी में. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. अगेन कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग चैट में लिख के पूछ सकते हैं. इसके लिए अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज देख लें तो देखिए इसको कई दफ़ा वेरिएबल्स में समझना बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है. मैं आपके लिए थोड़ी और आसानी कर देता हूँ. अगर एग्जामिनर यहाँ पे प्राइस दे देता है 10, यहाँ पे क्वांटिटी होती है 100, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी करते 10 इंटू 100 करते तो 10 बेसिकली ये हाइट है, बेस हमारे पास क्वांटिटी जो है वो बेस है. सो 10 इंटू 100 करेंगे तो 1000 आ जाएगा और 1000 एरिया कितना होगा? ये कंप्लीट एरिया होगा, ये वाला. ये टोटल एक्सपेंडिचर है जो कंज्यूमर पे कर रहे हैं, ये वाला. ओके, सो आई बिलीव इट्स क्लियर. सो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं. द डायग्राम, द सप्लाई कर्व फॉर अ फर्म इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इस तरह से होता है और ये कौन सा है? सप्लाई कर्व. सो ऑन एक्स वी हैव क्वांटिटी सप्लाई, दिस इज ओरिजिन पॉइंट, ऑन वाई वी हैव प्राइस. व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट? जब सप्लाई कर्व ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपकी इन्फिनाइट हो जाती है. सो क्वांटिटी सप्लाई इज इन्फिनाइट एट द गिवन प्राइस. सो प्राइस आपके पास कांस्टेंट होती है, क्वांटिटी आपके पास इन्फिनिट हो जाती है. जितनी मर्जी क्वांटिटी हो जाए प्राइस चेंज नहीं होती. इसे हम परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई भी कहते हैं. ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 7. एंड क्वेश्चन 7 says कि when the incomes of consumers of good X falls by 5%, income 5% fall कर गई, under which conditions will the demand curve shift furthest to the right? एक तो राइट को जाए और सबसे ज्यादा राइट को जाए. ठीक है, जैसे सबसे ज्यादा फर्दरेस्ट का क्या मतलब है? अगर डिमांड कर्व ऑलरेडी ये था, डिमांड राइट को गई तो यहाँ पे चली गई और राइट को गई तो यहाँ पे चली गई, तो फर्दरेस्ट क्या होगा? सबसे जो ज्यादा राइट पे जाएगा वो फर्दरेस्ट होगा. ओके, सो नेचर ऑफ द गुड क्या होनी चाहिए इस केस में? अगर इनकम फॉल हो रही है तो कौन सी चीज़ है जिसकी डिमांड बढ़ती है? ज़ाहिर इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ती है. लोग नॉर्मल गुड्स तो इनकम कम हो तो नॉर्मल गुड्स को कम खरीदते हैं, इंफीरियर गुड्स को ज़्यादा खरीदते हैं क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है. जब लोगों की परचेजिंग पावर कम हो तो ज़ाहिर है वो फिर इंफीरियर गुड्स ज़्यादा खरीदते हैं. सो इसका मतलब है डिमांड इंक्रीज होगी इंफीरियर गुड्स की. सो ऑप्शन ए और बी में से कुछ हो सकता था, ऑप्शन सी डी हम क्रॉस कर लेते हैं. अब फर्दरेस्ट का मतलब है ज्यादा चेंज किस में आएगा? जब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जितनी ज्यादा इलास्टिक होगी उतना ज्यादा चेंज आएगा. सो ये वाली इन इलास्टिक है. 0.8 इज लेस देन 1, 1.2 इज ग्रेटर देन 1. इसको हम इलास्टिक कहते हैं और इसको हम इन इलास्टिक कहते हैं. ये वाली जो है इन इलास्टिक है. सो इलास्टिक के केस में सबसे ज्यादा चेंज आता है डिमांड के अंदर. सो -1.2 वाला जो है ये हम आंसर चूज कर लेंगे. ओके, सो यहाँ पे लाइक साइन का कई दफा बच्चों को इशू आता है साइन समझने के लिए. माइनस नेगेटिव साइन बेसिकली नेगेटिव रिलेशनशिप के लिए होता है. नेगेटिव रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि अगर इनकम कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी. ये नेगेटिव रिलेशनशिप है. जब दो वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें इसे हम इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप कहते हैं. रिलेशनशिप नेगेटिव हो तो साइन नेगेटिव लगता है.
ठीक है, एक नेगेटिव -1.2 एक जीरो से नीचे वाला भी होती है, वो चीज़ नहीं है मैथ वाली। यहाँ पे नेगेटिव साइन जस्ट रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं। वैल्यू जो है जैसे 1.2 है, दिस इज ग्रेटर देन 1, सो ग्रेटर देन 1 हो तो ये इलास्टिक कहलाती है, और इलास्टिक के केस में सबसे ज़्यादा चेंज आएगा। ओके, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, गुड पी एंड गुड क्यू आर सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट सपोज करें ये पेप्सी है और ये कोका कोला है और ये कोला है, सपोज करें तो ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ पी, यानी पेप्सी की सप्लाई कम होगी तो पेप्सी महंगी हो जाएगी, पेप्सी की प्राइस प्राइस ऑफ पी जो होगी वो बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, जो भी वजह थी उसकी। विच रो डिस्क्राइब्स व्हाट विल हैपन टू द डिमांड। सो प्राइस पी के केस में क्या होगा, प्राइस पी के केस में गुड पी के केस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, सो ऑप्शन ए और बी हो सकते हैं। और गुड क्यू के केस में क्या होगा, पेप्सी चूंकि यानी प्रोडक्ट पी एक्सपेंसिव हो जाएगी तो प्रोडक्ट क्यू लोग अब ज़्यादा खरीदेंगे, तो उसके अंदर क्या होगी, डिमांड कर्व में राइट वर्ड शिफ्ट आ जाएगी। सो ऑप्शन बी हम चूज कर लेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको मैं थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि क्या होना चाहिए। अब ये मैं प्रोडक्ट पी का ग्राफ बना रहा हूँ, सही, प्रोडक्ट पी की वाई पे हम प्राइस ले रहे हैं, एक्स पे इसकी क्वांटिटी ले रहे हैं, दिस इज डिमांड एंड दिस इज सप्लाई। जहाँ पे दोनों मीट करेंगे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस पी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू होगी। अब जब सप्लाई पी प्रोडक्ट की कम होगी तो इसका सप्लाई को लेफ्ट को शिफ्ट हो जाता है, सप्लाई कम हो तो लेफ्ट को जाती है, तो इक्विलिब्रियम हमारे पास ई वन पे आ जाएगा, जहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस पी वन तक इंक्रीज कर जाएगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू वन तक कम हो जाएगी। अब चूंकि प्रोडक्ट पी की सप्लाई कम होने की वजह से इसकी प्राइस बढ़ गई, और दूसरा क्या हुआ, डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन है, क्योंकि एग्जामिनर इज सेइंग कि डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। सो डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन है, पॉइंट ई से ई वन की तरफ हमारी क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब मूवमेंट अलोंग द कर्व होगी और क्वांटिटी डिक्रीज हो रही होगी। और गुड क्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, ये तो हमने डिमांड एंड सप्लाई ग्राफ बनाए प्रोडक्ट पी के, क्यू का ग्राफ किस तरह का बनेगा, प्रोडक्ट क्यू का ग्राफ अगर मैं यहाँ पे बना दूँ तो डिमांड एंड सप्लाई हमारे पास ये थी, इक्विलिब्रियम हमारे पास, इक्विलिब्रियम प्राइस ये और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। देखिए जब प्रोडक्ट पी एक्सपेंसिव हो गई, प्राइस बढ़ गई, तो लोग क्या करेंगे, उसका सब्स्टिट्यूट खरीदेंगे, प्रोडक्ट क्यू जो है उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो डिमांड कब राइट को शिफ्ट हो जाएगी। सो क्यू का डिमांड कब राइट को शिफ्ट हो जाएगी। वही बात कि पेप्सी अगर महंगी होगी तो लोग कोक ज्यादा खरीदेंगे, कोक की डिमांड बढ़ जाएगी, राइट को शिफ्ट हो जाएगी। अगेन अगर क्लैरिटी में इशू हो तो फिर से पूछ सकते हैं आप, चैट में लिखें मेरे लिए। Okay, so question number 9 is the pressure to reduce the use of fossil fuels has led to oil companies reducing the level of investment in exploration of new reserves. What will be the long run effect of such a policy on the market for oil? Okay, so if oil exploration is decreasing, then what will happen to the market of oil? Definitely इसकी supply कम हो जाएगी, supply will decrease, supply will shift to the left, so option C और D में से कुछ हो सकता है, because जब आप oil explore ही नहीं करे तो ज़ाहिर supply कम हो जाएगी। प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, प्राइस विल डेफिनेटली इंक्रीज, जब सप्लाई कम होती है तो प्राइस इंक्रीज हो जाती है, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसको देख लेते हैं क्यों ऐसा होगा। देखिए ये ऑयल का डिमांड कब है, ये सप्लाई कब है, इक्विलिब्रियम मार्केट में ये इक्विलिब्रियम प्राइस पी है और क्वांटिटी क्यू है। अब जब ऑयल आप एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे तो ऑयल की सप्लाई कम होगी, डेफिनेटली सप्लाई कम होगी तो लेफ्ट को चली जाएगी, इक्विलिब्रियम ई से ई वन पे चला जाएगा, प्राइस पी से पी वन तक बढ़ जाएगी, क्वांटिटी क्यू से क्यू वन तक कम हो जाएगी। अब ऑयल की प्राइस पे क्या फर्क पड़ा, प्राइस इंक्रीज होगी, और जबकि सप्लाई जो है वो दैट हैज शिफ्टेड टू द लेफ्ट ड्यू टू लेस एक्सप्लोरेशन। क्वेश्चन नंबर 10 सेज के अगेन वही सेम स्कीम है, स्टॉप करें वीडियो को, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन सुन लें जो मैं आपको बता रहा हूँ। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज -0.6, 0.6 इज लेस देन 1, और उसके बाद एग्जामिनर सेइंग के द सप्लायर वांट्स टू क्लियर ऑल सरप्लस स्टॉक्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड reduces the price of a good
बाय 50%, प्राइस को वो 50% कम कर देते हैं, प्राइस कम कर देते हैं 50%। What is the effect of this price change on quantity purchased and expenditure on the good? अब जब देखें प्राइस आप कम करते हैं तो बेसिक रूल है लॉ ऑफ डिमांड का, प्राइस कम करते हैं तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है। लेकिन अब यहाँ पे डिमांड चूंकि इनइलास्टिक है, डिमांड बढ़ेगी तो सही लेकिन कम रेट के साथ, जितनी प्राइस में चेंज है उतना चेंज डिमांड में नहीं आएगा। सो हम कहेंगे क्वांटिटी डिमांड विल राइज। अच्छा, और दूसरा जैसे मैंने बताया इनइलास्टिक है तो जितना प्राइस में चेंज आता है डिमांड में उससे कम चेंज आएगा। देखिए 60% तो 50% से ज़्यादा है, इसलिए हम इन दो ऑप्शंस को क्रॉस कर लेते हैं। अगर 50% प्राइस चेंज से 60% डिमांड में चेंज है तो ये इलास्टिक होती और आंसर पे ग्रेटर देन 1 होना चाहिए था 0.6 की बजाय। तो ऑप्शन ए और बी में से कुछ हो सकता है। एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा, देखें जब इन इलास्टिक डिमांड है आपके पास, जब डिमांड इज इन इलास्टिक तो इसका मतलब ये होता है प्राइस कम करने से आपका रेवेन्यू भी कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी डिमांड तो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी जितनी प्राइस आपने कम की, तो इसलिए आपकी रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। एक्सपेंडिचर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है और रेवेन्यू प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, प्राइस बहुत ज़्यादा कम हुई, लोग डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं इंक्रीज करेंगे, एज अ रिजल्ट लोगों का एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगेन कोई कंफ्यूजन हो तो फिर से आप चैट में लिख सकते हैं। Question number 11 says a firm is producing 100 units at a price of $10. The price elasticity of supply is 0.5. The price is raised to $12. What is the new level of output? देखिए आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आप फॉर्मूला लगा लें। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ओवर परसेंटेज इन प्राइस, सिंपल। सो आपके पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई उसने बता दिया 0.5 है तो यहाँ 0.5 लिख दें इसकी जगह पे। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अभी हमें नहीं पता कितना है, लेकिन परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमें पता है 10 से 12 हो गई है। तो कितना इंक्रीज है, 20% इंक्रीज है। 10 से 12 अगर हो जाए तो ये कितना होता है, 20% होता है। कैसे फाइन करेंगे, चेंज यानी टू का चेंज है, 10 से 12 टू का चेंज है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। तो जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 10 इंटू टू करेंगे तो 20% आ जाएगा। सो 20% मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए इसके नीचे 1 लिख देता हूँ, जब इक्वल का साइन बीच में हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 20% इंटू 0.5 करें तो ये 10% बनेगा। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कितना होना चाहिए, परसेंटेज इन क्वांटिटी सप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 20% करेंगे तो ये 10% हो जाएगा। सो क्वांटिटी अगर ऑलरेडी 100 यूनिट्स थी, 10% उसमें इंक्रीज करेंगे तो 100 का 10% 10 बनता है, तो 110 हो जाएगी टोटल क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी। ठीक है, बाकी अगर कंफ्यूजन हो तो अगेन कोई सेम स्कीम चैट में लिख दें, आई गेट बैक टू यू। क्वेश्चन नंबर 12 says in a town bus fares fall by 50% and this leads to an increase in bus use by 30%। देखिए प्राइस जितनी चेंज हुई है डिमांड में उतना चेंज नहीं आया, तो इट मीन्स कि डिमांड इन इलास्टिक हुई। एग्जामिनर ने थोड़ी चालाकी की है, सारी ही इन इलास्टिक वैल्यूज दे दी, इसलिए हम इनको फिल्टर आउट नहीं कर सकते, हमें पूरा कैलकुलेट करना होगा। द इफेक्ट ऑफ यूज इज वेरी लो विद ओनली 1% रिडक्शन, sorry, the effect on car use is very low with only 1% reduction. What is the value of cross elasticity of demand? अब एक चीज ध्यान में रख लें, अब यहाँ पे कार और बस जो है ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। जब सब्स्टिट्यूट हैं तो आंसर क्या होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट की क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होती है, तो ये ऑप्शंस में क्रॉस कर देते हैं। क्यों पॉजिटिव होती है, देखें जैसे सब्स्टिट्यूट की हम कोक और पेप्सी की जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, अगर कोक की प्राइस बढ़े तो पेप्सी की डिमांड भी बढ़ जाती है, क्योंकि कोक महंगी है तो लोग पेप्सी ज़्यादा खरीद लेंगे। इसी तरह से अगर बस फेयर कम हो रहा है तो कार का यूज़ कम हो जाएगा, दोनों चीज़ें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो इसे हम पॉजिटिव लिंक कहते हैं। अब आगे हम मूव करते हैं, आगे देख लेते हैं कि एग्जामिनर क्या कह रहा है। व्हाट वैल्यू ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन प्रोडक्ट। और वो कौन सी चीज़ की क्वांटिटी डिमांड की बात हो रही है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है हमारे पास कार ट्रेवल की, सो कार लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बस फेयर। ठीक है, बस फेयर चेंज होने से
कार्स की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब एग्जामिनर क्लियरली हमें क्या बता रहे हैं, एग्जामिनर हमें बता रहे हैं कि डिमांड में सिर्फ 1% चेंज है। कितना चेंज है? 1%। तो यहाँ पे 1% लिख लिख देता हूँ। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बस कितना हुआ है? बस फेयर फेल बाय 50%। तो यहाँ पे मैं 50% लिख देता हूँ। सो परसेंटेज का साइन परसेंटेज से कैंसिल कर दें, आपके पास तो आ जाएगा 1/50। ठीक है, 1/50 जब आप करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 0.02। ठीक है, सो कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं 1/50 इज इक्वल टू 0.02। सो साइन कौन सा आएगा? साथ में प्लस का आएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिमांड हमेशा पॉजिटिव है। सो ऑप्शन सी हमें मिल जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम मूव करेंगे। और अगेन स्टॉप द वीडियो, रीड द क्वेश्चन। जब आप पहले पढ़ लेते हैं फिर सुनते हैं एक्सप्लेनेशन तो फिर आपके लिए समझना आसान होता है। इन द डायग्राम द डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स ऑफ wheat in Australia आर शोन। सो ये डिमांड इन सप्लाई wheat है। इनिशियल इक्विलिब्रियम इज एट x। तो इसका मतलब है आपके पास इनिशियल डिमांड कर्व पे कौन सा होगा? ये डिमांड कर्व होगा। और इनिशियल सप्लाई कर्व कौन सा होगा? ये वाला होगा, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जहाँ मीट करते हैं वो इक्विलिब्रियम होता है। तो यहाँ पे इनिशियल इक्विलिब्रियम x पे, तो आपके पास डिमांड एंड सप्लाई डी एन एस होंगे। द गवर्नमेंट इम्पोजेस अ सेल्स टैक्स ऑन व्हीट। जब सेल्स टैक्स लगा लेंगे तो सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, ये सप्लाई को लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर देते हैं, एस से S1 की तरफ शिफ्ट कर देगा। सो नया सप्लाई को हमारे पास क्या बनेगा फिर? S1 बनेगा। इसको मैं ब्लू कलर के साथ शेड कर देता हूँ फिर से। ये हमारे पास नया सप्लाई का आ गया S1। ओके, सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेल्स टैक्स के बाद फिर क्या होगा? एंड एट द सेम टाइम एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लोगों की परचेजिंग पावर को कम कर देता है। परचेजिंग पावर कम हो तो डिमांड कम हो जाती है। डिमांड इनिशियली डी थी, डिमांड कम हो तो लेफ्ट को चले जाती है। सो नया डिमांड को हमारे पास ये होगा D2। अब ब्लू लाइंस जहाँ पे मीट कर रही हैं नया डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स वो हैं, और ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट डी पे मीट कर रहे हैं। सो डी विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगेन अगर समझ ना आए तो फिर से आप चैट में लिख दें मेरे लिए, कमेंट्स में, मैं आपकी तरफ इंशाल्लाह आई विल गेट बैक टू यू। ओके, सो क्वेश्चन 14। A free market is currently experiencing excess supply at price P1. Uh, what will be the effect on current market equilibrium market situation if a maximum price is set above P1? अब यहाँ पे एग्जामिनर क्या ट्रिक करता है बच्चों के साथ जिसको समझने में काफी ट्रबल आती है, बच्चे अक्सर गलती कर लेते हैं। ज़हन में रखिए मैक्सिमम प्राइस का कॉन्सेप्ट है कि ये इक्विलिब्रियम से नीचे होती है, और जब इक्विलिब्रियम से नीचे गवर्नमेंट फिक्स करती है तो उससे शॉर्टेज कॉज होती है। इक्विलिब्रियम से ऊपर जो प्राइस सेट होती है वो मिनिमम प्राइस होती है। सो P1 ऑलरेडी क्या थी? इक्विलिब्रियम से ऊपर थी, क्योंकि इट वाज कॉजिंग एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई की वजह से हम ऑलरेडी जानते हैं कि प्राइस P1 जो है ये हमारे पास मिनिमम प्राइस थी जो इक्विलिब्रियम से ऊपर थी। अब उसने कहा है कि गवर्नमेंट अब क्या करती है, P1 से भी ऊपर एक मिनिमम मैक्सिमम प्राइस लगा देती है। देखें, इक्विलिब्रियम से ऊपर अगर मैक्सिमम प्राइस लगाते हैं तो वो इनफेक्टिव होती है, उसका कोई रोल नहीं होता। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा देयर विल बी नो इफेक्ट। सो बाकी ऑप्शन सारी गलत हो जाएंगे। लेकिन अगेन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं एक दफ़ा आपको ग्राफ के थ्रू भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपके पास डिमांड कर्व है, ये आपके पास सप्लाई कर्व है। सो इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास पी है। अब यहाँ पे एग्जामिनर ऑलरेडी हमें बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एक प्राइस फिक्स की हुई है P1 जो कि एक्सेस सप्लाई को कॉज कर रही है। एक्सेस सप्लाई का मतलब होता है सरप्लस को कॉज कर रही है। यानी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्राइस P1 कहाँ पे सेट की हुई? इस जगह पे की हुई है, जिसकी वजह से सप्लाई ज़्यादा है, यहाँ तक सप्लाई और डिमांड कम है। अब एग्जामिनर आगे कह रहे हैं गवर्नमेंट ने मैक्सिमम प्राइस सेट की जो कि P1 से भी ऊपर है। तो P1 से ऊपर है तो मतलब और इधर आ जाएगी। तो अब प्राइस P1 से और ऊपर जाती जाएगी तो डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है ये और ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा, सरप्लस और बढ़ता जाएगा, एक्सेस सप्लाई जिसे हम कह रहे हैं। तो ये इक्विलिब्रियम की तरफ तो नहीं आएंगे वापस। सो मिनिमम एक चीज दूसरा जहन में रखें, सॉरी, ये इक्विलिब्रियम की तरफ वापस आएगी, क्योंकि मैक्सिमम प्राइस इक्विलिब्रियम से ऊपर नहीं हो सकती। इक्विलिब्रियम से ऊपर अगर एग्जामिनर कभी भी कह दे कि मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट ने सेट की है तो जहन में रखें वो हमेशा इनइफेक्टिव होती है। उसको आप लोगों ने देयर विल बी नो इफेक्ट या इट विल रिमेन अनचेंज।
तो इस तरह के ऑप्शंस आपको चूज करना होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज अ लाइकली डिसएडवांटेज ऑफ द गवर्नमेंट प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स टू द अनएम्प्लॉयड? ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती हैं? मुफ्त जो लोगों को मिल जाता है, कैसे? जैसे गवर्नमेंट कोई अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे देती है लोगों को। अब अगर लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे रही हो, मुफ्त में पैसे मिल रहे हो घर में बैठे, तो लोग जॉब करेंगे? नहीं करेंगे। तो क्या डिसएडवांटेज होता है इसका, ट्रांसफर पेमेंट का मेनली? ये डिसइंसेंटिव टू एक्सेप्ट पेड जॉब्स, पेड वर्क। सो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसका ये एक डिसएडवांटेज है कि लोग काम करने के लिए तैयार नहीं। लोगों को अगर पैसे मिल रहे हो, 10,000 रुपीज घर बैठे मिल रहा हो, और उसको अगर 12,000 की जॉब आप ऑफर करेंगे, तो वो 2,000 एक्स्ट्रा के लिए तो सारा दिन काम नहीं करेगा ना। वो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर गवर्नमेंट इस तरह की ट्रांसफर पेमेंट ना दे रही हो, तो लोग हर कोई काम करने की कोशिश करेंगे। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं हो सकती? डिक्रीज इन स्टैंड ऑफ लिविंग। देखिए, स्टैंड ऑफ लिविंग तो इंक्रीज होना चाहिए ना। ये तो कि अब लोगों को पैसे मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो तो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है। उसकी वजह से स्टैंड ऑफ लिविंग उनका बेहतर होगा, डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि कुछ पैसे आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ वो अपनी कंजम्पशन कर लेंगे। इंक्रीज इन इनइक्वालिटी, ऐसा भी नहीं इनइक्वालिटी कम होती है। जब गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स के थ्रू अमीरों से टैक्स लगा के गरीबों को पे करेगी, तो फिर इससे इनइक्वालिटीज कम होती है, अमीर और गरीब की इनकम गैप कम होता है। तो ये भी नहीं हो सकता। इंक्रीज इन पॉवर्टी, ये भी नहीं है। लोगों को गवर्नमेंट पैसे दे रही है, तो गरीब लोगों को दे रही होगी ना, अमीरों को तो नहीं दे रही होगी। अब गरीबों को पैसे मिल रहे हैं, तो उनकी पॉवर्टी थोड़ी कम होगी, इंक्रीज नहीं होगी। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। Question number 16 is, which combination of policies would increase the inequality of distribution of income and wealth? याद रखें, प्रोग्रेसिव टैक्स जब हम लगाते हैं, बढ़ाते हैं, तो प्रोग्रेसिव टैक्स बढ़ाने से इनइक्वालिटी कम होती है। तो इट मीन प्रोग्रेसिव टैक्स हमें नहीं बढ़ाना चाहिए, तो इंक्रीज इंक्रीज नहीं करना चाहिए, प्रोग्रेसिव टैक्स को डिक्रीज करना चाहिए। जब प्रोग्रेसिव टैक्स होता है कि जो अमीरों पे ज्यादा लगता है, गरीबों पे कम लगता है। जब प्रोग्रेसिव टैक्स आप कम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है आप गरीबों को ज्यादा टैक्स करें, अमीरों को कम टैक्स करें। तो अमीर और अमीर हो जाएंगे, उनकी इनकम और बढ़ जाएगी, गरीबों की इनकम और नीचे चली जाएगी। सो प्रोग्रेसिव टैक्स आपको डिक्रीज करना होगा। मिनिमम वेज को क्या करना है? मिनिमम वेज को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। मिनिमम वेज क्या होता है? जो गवर्नमेंट ने एक लॉ सेट किया होता है कि कम से कम इतने वेज पे करने, जो कि इक्विलिब्रियम से ऊपर होते हैं। अगर मिनिमम वेज को रिड्यूस कर देगी गवर्नमेंट, तो इसका मतलब ये है कि जो गरीबों के लिए गवर्नमेंट ने, या वर्किंग क्लास के लिए जो गवर्नमेंट ने एक मिनिमम वेज सेट किया हुआ था, अब उससे कम पैसे मिल रहे होंगे लोगों को। जब गरीब और गरीब हो जाएगा कम पैसों की वजह से, तो डिस्पैरिटीज या इनइक्वालिटीज और बढ़ेंगी। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या करनी चाहिए? भी रिड्यूस करनी चाहिए। ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं जो गरीबों को गवर्नमेंट, पुअर क्लास को गवर्नमेंट कुछ पैसे पे कर रही होती है, जैसे वेलफेयर पेमेंट्स हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हो गए। अगर ऐसी इनकम्स गवर्नमेंट देना बंद कर देगी, कम कर देगी, तो ज़ाहिर है गरीब और गरीब हो जाएगा, अमीर और अमीर हो जाएगा। सो एज अ रिजल्ट इनइक्वालिटीज बढ़ेंगी। तो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है, कौन सी चीज़ की वजह से इनइक्वालिटी बढ़ेगी? सो ऑप्शन बी की वजह से इनइक्वालिटीज इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। Moving to question number 17, which changes will increase circular flow of income? देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जेन में रखें, इंक्रीज होगा अगर इंजेक्शंस आप इंक्रीज करते जाएंगे, यानी इकोनॉमी में कैश इंजेक्ट करते जाएं, तो सर्कुलर फ्लो बढ़ता जाएगा। देखिए, अगर आप कैश विदड्रॉ करके सीज कर लेते हैं, जैसे आपने कमाया, सेव करके रख दिया, खर्च नहीं करेंगे, तो सर्कुलर फ्लो फ्लो इंक्रीज नहीं होगा। सर्कुलर फ्लो इंक्रीज करने के लिए आपको खर्च करना है, एज ए इन्वेस्टर आपको इन्वेस्ट करना है, और एज ए गवर्नमेंट आपको स्पेंडिंग करनी है, एज ए एक्सपोर्टर आपको एक्सपोर्ट करना है। तो इंजेक्शंस बढ़ाने, लीकेजेस को कम करना। इंजेक्शन वो मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू कैश सर्कुलर फ्लो के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं। सो हायर इंपोर्ट्स, तो ये तो लाइक नहीं होनी चाहिए। अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, तो सर्कुलर फ्लो कम होता जाएगा, क्योंकि कैश लीक हो जाएगा। सो ये हम काट देते हैं दो ऑप्शंस को। ऑप्शन ये भी मैं काट देता हूँ, क्योंकि एक निकल गई तो फिर अगली वैसे पॉसिबल नहीं होती। आगे हायर, ये दो ऑप्शंस में से कुछ हो सकता है कि इम्पोर्ट्स जो है वो क्या क्या करनी चाहिए, हायर नहीं होनी चाहिए। अगर हायर इम्पोर्ट्स होंगे, तो सर्कुलर फ्लो कम हो जाएगा, ये कैश आउट फ्लो कर जाएगा कंट्री से, आपको इंजेक्शन करने के लिए। हाई इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, यस यस। तो एग्जामिनर ने अभी भी आपको क्लियर ऑप्शन नहीं दी, सी डी में से अभी भी कुछ भी हो सकता है।
हायर टैक्सेशन होनी चाहिए, तो हायर टैक्सेशन अगर करेंगे टैक्सेशन भी, क्योंकि लीकेज होता है। अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो सर्कुलर फ्लो में से कैश लीक हो जाएगा, सर्कुलर फ्लो में से कैश लीक होगा तो फिर सर्कुलर फ्लो में फ्लो कम हो जाएगा, लेकिन इसलिए लीकेजेस नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन नो हम चूज कर लेंगे, हाई टैक्स नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन डी आंसर है। अगेन क्लैरिटी में इशू हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। ओके, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको जरा मैं कोशिश करूंगा कि जितना इजी तरीके से इसको समझा सका मैं आपको समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को पढ़ लें एक दफा अच्छे से, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लें। एन इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम हैज ट्रेड डेफिसिट ऑफ $20 billion, okay, and budget surplus of $20 billion. Investment spending is $50 billion. What is the total saving? देखिए, इकोनॉमी जब इक्विलिब्रियम में होती है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये होता है कि लीकेजेस और इंजेक्शंस बराबर हैं, इक्वल है। सो लीकेजेस होते क्या हैं? सेविंग एक लीकेज होता है, टैक्स एक लीकेज होता है, और इम्पोर्ट्स एक लीकेज होता है। एंड इंजेक्शंस क्या होते हैं? इंजेक्शंस इंक्लूड लाइक इन्वेस्टमेंट्स, इंजेक्शंस इंक्लूड्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी, एंड एक्सपोर्ट्स एक्स। अब यहाँ पे अगर आप जेन में लाएं, ट्रेड सरप्लस या ट्रेड ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड सरप्लस या डेफिसिट फाइंड करने के लिए हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड फाइंड करना पड़ता है, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। अब हमें एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स अगर चाहिए तो इसी इसी इक्वेशन में से आपको थोड़ी मैनिपुलेशन करनी कि ये चीज़ आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको एम को उधर लेके जाना होगा। चले मैं ले जाता हूँ। सेविंग प्लस टैक्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, ये मैंने कर दिया इसको। ठीक है। और उसके बाद दूसरा है हमारे पास बजट सरप्लस। बजट का क्या फॉर्मूला होता है? बजट का फॉर्मूला होता है गवर्नमेंट की इनकम और टैक्सेस, गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस होता है। बजट इज द समरी ऑफ ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? टैक्स में से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर निकाल दें। टैक्स इनकम होती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है। इसमें से टैक्स में से गवर्नमेंट स्पेंडिंग निकाल दें तो आपके पास बजट आ जाएगा। अब ये वाली फिगर अगर मुझे चाहिए तो इसको मैं कैसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ? इसके लिए मैं जी को उठा के इधर ले जाऊं तो टैक्स में से माइनस कर दूंगा। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि सेविंग प्लस टैक्स माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर लेता हूँ इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, एक्स माइनस एम। अब मेरे पास काफ़ी इक्वेशन जो है वो रिफाइंड फॉर्म में आ गई है। अब मैं फर्दर क्या करता हूँ, इसमें वैल्यूज पुट कर देता हूँ। सो सेविंग प्लस टैक्सेस माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो कह रहे सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमारे पास। ये क्या है हमारे पास? सॉरी, बजट जो है वो सरप्लस है, तो सरप्लस का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सो 20 हमारे पास आ जाएगा। टैक्सेस में से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर निकालने के बाद 20 जो बैलेंस आता है वो मैंने लिख दिया। आगे मैं लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एग्जामिनर कह रहा है 50 की है, तो चलो 50 इधर लिख देते हैं। आगे मैं माइनस लिख देता हूँ। ट्रेड डेफिसिट कितना है? देखें, ट्रेड डेफिसिट हमारे पास यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स कितनी है? 20 की। जब ट्रेड डेफिसिट हमारे पास 20 के है तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? एक्स माइनस एम हमारे पास जो ट्रेड डेफिसिट है वो 20 का है। ठीक है। सो ये लाइक हमारे पास इस तरह से आंसर आ गया। अब हम फर्दर इसको प्रोसीड करें तो सेविंग जो है एज इट इज रहेगा। सेविंग इज इक्वल टू 50 माइनस 20। ये ऑलरेडी जो माइनस 20 था, अब इस 20 को भी मैं उधर उस तरफ ले आऊंगा तो ये भी उधर आके माइनस 20 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस था उधर माइनस हो जाएगा। तो सेविंग कितनी हो जाएगी? 50 माइनस 20 कर देंगे तो ये आपके पास 10 आ जाएगा, $10 बिलियन आ जाएगा। सो सेविंग हमारे पास क्या होगी फिर? ऑप्शन बी हमारे पास आंसर हो जाएगा, $10 बिलियन का। ओके, सो आई बिलीव यू अंडरस्टैंड दिस। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है। अच्छा सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे मेरे ख्याल से साइन का थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पे बीच में साइन पॉजिटिव था ये वाला। ठीक है, ये वाला साइन पॉजिटिव था, इसको एज इट इज हम ये पॉजिटिव ही रखते हैं, लेकिन एक्स माइनस एम चूंकि डेफिसिट था तो इसके साथ माइनस साइन लगा देते हैं। ठीक है। सो माइनस, और ये एज इट इज पॉजिटिव आता जाएगा। तो माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस साइन हो जाएगा। इस चीज़ को आप देख लें, करेक्ट कर लें, बाकी चैनल में सही है सारा।
डेफिसिट का मतलब होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका नेगेटिव होगा, माइनस में। Question number 19 is a finance company incurs heavy losses and makes an accountant redundant. कंपनी को लॉस हो गया और उसने वर्कर को निकाल दिया, अकाउंटेंट को. द अकाउंटेंट सीक्स अ न्यू जॉब थ्रू एन एम्प्लॉयमेंट एजेंसी विच स्पेशलाइजेस इन जॉब्स इन अकाउंटिंग. ठीक है, तो किसी एजेंसी के पास चला गया जो जॉब उन्हें प्रोवाइड कर सकती है फर्दर. सो व्हाट, या उनको हेल्प कर सकते हैं जॉब फाइंड करने में. What describes the type of unemployment of accountant who is seeking a new job? देखिए, ये इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जहाँ पे आपका स्किल अभी भी सेलेबल है, ऐसी जॉब अनएम्प्लॉयमेंट को हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. क्योंकि कंपनी लॉस में चली गई, उसने बंदा निकाल दिया, वही बंदा सेम स्किल के साथ ही विल फाइंड द न्यू जॉब विद द सेम सेट ऑफ स्किल. सो दिस इज काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड बेसिकली फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. जी, बाकी क्यों नहीं हो सकती. सीजन भी चेंज होने की कोई बात नहीं हुई थी. स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी, आपका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर में चेंज आ जाता है, या फिर रिलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री हो जाती है. तो ऐसा तो कुछ हमें नहीं नज़र आया यहाँ पे. और टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से होती है. यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी का भी कोई तस्करा नहीं था. यहाँ पे वो एग्जामिनर हमें कह रहा था बस बिजनेस को लॉस हो गया किसी भी वजह से, अब वो उसने बंदे को निकाल दिया. Okay, so question number 20 is an aggregate demand curve slopes downward from left to right. एग्रीगेट डिमांड ऐसे ही होता है, हमेशा जहन में रखें. और ये शो करता है कि प्राइस लेवल कम होता है तो रियल जीडीपी हमारा बढ़ जाता है. 5 पे प्राइस लेवल, एक्स पे रियल जीडीपी. Okay, so one reason for this is that a reduction in the average price level will lead to. अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब प्राइस कम होती है लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, रियल इनकम बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो रियल जीडीपी होगा वो इंक्रीज हो जाता है. इंक्रीज इन द रियल जीडीपी ऑफ मनी बैलेंसेस. जो आपके पास पैसे होते हैं उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, इसलिए प्राइस लेवल कम होने से लोग एग्रीगेट डिमांड लोगों की बढ़ जाती है. सो ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट आंसर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21. और 21 क्वेश्चन जो है, विच कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड एज प्राइमरी इनकम इन द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो प्राइमरी इनकम और सेकेंडरी इनकम ये काफ़ी ट्रिकी सा कॉन्सेप्ट है. इसका मैं लिंक, इस कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन मैंने एक लिंक में दी हुई है, वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा. आप प्लीज़ वहाँ से उस पर क्लिक करके प्राइमरी और सेकेंडरी इनकम्स क्या होती हैं इनके बारे में ज़रा डिटेल से वीडियो देख लें. ओके. ट्रेड इन गुड्स प्राइमरी इनकम्स का पार्ट नहीं होता. सो ऑप्शन सी और डी में से कुछ आ जाएगा. इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, दो ऑप्शंस ऊपर वाली. करंट ट्रांसफर्स प्राइमरी इनकम में आती हैं तो करंट ट्रांसफर्स भी प्राइमरी इनकम में नहीं आते. सो ये ऑप्शन गलत हो गई, तो ऑप्शन डी हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ से फिल्टर आउट हो गया सी ऑप्शन. करंट ट्रांसफर बेसिकली आपकी जो सेकेंडरी इनकम का पार्ट होती है, प्राइमरी इनकम का पार्ट नहीं होती. करंट ट्रांसफर होती क्या है, ये भी जैसे मैंने बताया, वीडियो एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, वो आप लिंक में देख लें, उसको क्लिक कर लें. एम्प्लॉयमेंट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये ज़ाहिर आपकी प्राइमरी इनकम का पार्ट होता है बिकॉज यू आर सेलिंग योर सर्विस टू अ फॉरेन कंपनी. तो उससे जो आपको इनकम आ रही होगी. एक होता है रिमिटेंसेस. रिमिटेंसेस नहीं है ये. रिमिटेंसेस और एम्प्लॉयमेंट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये दोनों में फ़र्क होता है. ये फ़र्क जानने के लिए भी आप अगेन वही जो मैं बता रहा हूँ, वीडियो आप जाके लिंक में देख लें, आपको डिटेल्ड आंसर मिल जाएगा इसका. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. Question number 23 says the diagram shows the rate of inflation of 7 countries for 2015 and 16. Okay, so this lighter shade is for 2015 and the darker shade is for 2016, right? So these are different uh, countries. Okay, so what can be concluded from the graph, right? So option A is the correct answer. I'll explain only correct option here, and if you have any confusion with other options, then you may write in the comment. So what can be concluded from the graph? Prices in Costa Rica rose in 2015, but remained constant in 2016. So A is the correct answer. You can see that in 2015, the inflation rate is positive, but in 2016, inflation rate is zero, right? It is on the bar.
like on this bar. So it means that there is no inflation in 2016 because prices remain constant. कांस्टेंट का मतलब होता है जो प्राइस लास्ट ईयर थी अभी भी उतनी है, 100 रुपीज की चीज थी अभी 100 की मिले तो इसका मतलब है प्राइस में कोई चेंज नहीं है, कांस्टेंट प्राइसेस है। इन्फ्लेशन रेट जीरो होता है उसके, इसमें इन्फ्लेशन रेट जीरो होगा तो ज़ाहिर है इसी जीरो की बार के ऊपर हम चलेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24 इज country R and country S are going to trade 1 unit of product X for half unit of product Y, and with a given amount of resources, country R can produce 30 units of X and 50 units of Y. Country S can produce 50 units of X and 25 units of Y. तो ये उनकी production possibilities है। Which statement is correct according to the comparative cost advantage? देखिए comparative cost advantage में अगर एक कंट्री दोनों चीजें ज्यादा बना रहा हो, जैसे कंट्री आर है, कंट्री आर कैन प्रोड्यूस एक्स क्वांटिटी, मोर क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड देन कंट्री एस, और अगर हम यहाँ पे देखें तो आर अगेन हमारे पास वाई गुड भी ज्यादा बना रहे एस की निस्बत, तो it means कि R has absolute advantage in both goods and S has absolute disadvantage in both goods. So ये comparative advantage की situation है। जब comparative advantage exist करते हैं तो ट्रेड करने का दोनों कंट्रीज को फायदा होता है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, फ्री ट्रेड विल बेनिफिट बोथ द कंट्रीज। यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये थोड़ी सी कई दफा कंफ्यूजन कॉज करती है, तो इसको आप थोड़ा फिल्टर आउट कर देंगे कि जब कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज एग्जिस्ट करता है और फ्री ट्रेड है, किसी किस्म के ट्रेड बैरियर्स नहीं है, तो इवेंचुअली एडजस्टमेंट्स विल टेक प्लेस एज पर द डिमांड एंड सप्लाई, और फिर दोनों जो कंट्रीज हैं एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेंगे अपने गुड्स, कंट्री एक्स और वाई एक दूसरे के साथ, जिस चीज़ में कंट्री वाई स्पेशलाइज करेगा वो कंट्री एस को बेच, सॉरी कंट्री आर स्पेशलाइज करेगा वो कंट्री एस को बेच देगा, जिस चीज़ में कंट्री एस स्पेशलाइज करेगा वो कंट्री आर को सेल कर देगा। इस तरह से ये आपस में ट्रेड कर लेंगे, और बेसिक इसका लाइक क्राइटेरिया है कि जब कंपैरेटिव एडवांटेज एग्जिस्ट करते हैं तो कंट्रीज को ट्रेड करने में फायदा होता है, तो फ्री ट्रेड विल बेनिफिट बोथ द कंट्रीज आर एंड एस। अब यहाँ पे बाकी जो कंफ्यूजन आती है वो ये है कि फ्री ट्रेड विल बेनिफिट नीदर आर नॉर एस, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब कंपैरेटिव एडवांटेज की बेस पे आप स्पेशलाइज करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपको फायदा ना हो। लेकिन अगेन जैसे ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, या तो क्वेश्चन के कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा इशू है पॉसिबली, अदरवाइज आप इसको ओमिट कर देंगे स्टेटमेंट को, बाकी ऑप्शंस देख लें अकॉर्डिंगली। फ्री ट्रेड विल बेनिफिट आर बट नॉट एस, ठीक है। सो ये भी अगेन सही नहीं होगा, जब एब्सोल्यूट कंपैरेटिव एडवांटेज की बेस पे दोनों स्पेशलाइज कर लेंगे तो दोनों को फायदा होगा, ठीक है। सो फ्री ट्रेड विल बेनिफिट एस बट नॉट आर, तो ये भी नहीं हो सकता। सो जैसे मैंने बताया कंपैरेटिव एडवांटेज जब एग्जिस्ट करते हैं तो ट्रेड करने का दोनों कंट्रीज को फायदा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 इज व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है कि आपका इनफ्लो ऑफ मनी कम है आपकी कंट्री में, आउटफ्लो ऑफ मनी ज्यादा है, या फिर कह लेंगे एक्सपोर्ट्स कम है और इम्पोर्ट ज्यादा है, ठीक है। सो इसकी आंसर है इसका हमारे पास डी, अ जनरल फॉल इन नेशनल प्रोडक्टिविटी। अगर प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी कम होगी किसी भी कंट्री की तो जाहिर है वो कंट्री पे कम चीजें बना सकेगा, कम प्रोडक्शन कर सकेगा। when lesser production takes place in the country due to low like productivity, then definitely it will have to import more goods from other countries and it will have lesser quantity to export to other countries. So exports कम हो जाएंगे, imports बढ़ जाएंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट आपका डेफिसिट में चला जाएगा। अगर बाकी कंफ्यूज कर रही हूँ ऑप्शंस तो आप मुझे कमेंट्स में लिख दें। Question number 26 says the diagram shows long run aggregate supply and long run aggregate demand curves for an economy. So ये आपके पास long run aggregate supply and this is aggregate demand and initial equilibrium is at point X. आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन सेज कि द इनिशियल इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट एक्स, जो हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया। विच कॉम्बिनेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू पोजीशन वाई। अब हमें यहाँ पे मूव करना है वाई पे। वाई पे तब हम मूव कर सकते हैं जब हमारा एग्रीगेट डिमांड राइट को चला जाए, यहाँ से यहाँ चला जाए, ठीक है बेटा। सो एग्रीगेट डिमांड को अगर आपको इंक्रीज करना है तो फिर क्या करना होगा, मनी सप्लाई के साथ क्या करना होगा, मनी सप्लाई तो बढ़ानी पड़ेगी।
एक्सपेंशनरी पॉलिसी आपको यूज करनी होगी। सो ऑप्शन ए हो सकता था या फिर ऑप्शन सी हो सकता था। इन दो ऑप्शंस को हम क्रॉस कर देते हैं, ये क्रॉस कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए आपको कम करना पड़ेगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे, इन्वेस्टर ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, कंज्यूमर ज्यादा कंज्यूम करेगा, ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है मैजिकल फॉर्मूला C+I+G+X-, ये फॉर्मूला आप लाजमी ज़हन में रखा करें। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है, लोग लोन लेके इन्वेस्ट भी कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी, कंज्यूमर ज्यादा कंज्यूम करेगा, ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो राइट को शिफ्ट हो जाती है। जब एग्रीगेट डिमांड राइट को शिफ्ट हो जाएगी AD से AD1 की तरफ, तो इक्विलिब्रियम हमारे पास Y से Y1 पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट को। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27, द डायग्राम। अच्छा, मैं सिर्फ सही ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसको अपलोड करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको किसी, इफ यू फील एनी ट्रबल इन अदर ऑप्शंस देन यू कैन राइट इन द कमेंट, और मैं फिर आपको उधर एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट्स। 27 is the diagram. Sorry, the government undertakes a policy of financing training and retraining unemployed workers. Uh, which terms are most likely to be used to classify this policy? ये किस तरह की पॉलिसी है? क्या ये डिमांड साइड पॉलिसी है, पार्शली डिमांड साइड पॉलिसी है, पार्शली नहीं है? तो फिर हम इसको डिमांड साइड पॉलिसी, यस यस को तो हम चूज ही नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शंस मैं सारी पे क्रॉस कर देता हूँ, फर्स्ट टू ऑप्शंस। आगे चलते हैं, क्या सप्लाई साइड पॉलिसी है? तो ये भी यस यस की ऑप्शन आ जाएगी, तो अभी भी ये फिल्टर नहीं हो सकता। क्या ये फिस्कल पॉलिसी है? फिस्कल पॉलिसी क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से रेलिवेंट होती है, जब गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हो रहे होंगे, तो यस इट इज फिस्कल पॉलिसी। क्या मॉनेटरी पॉलिसी है? तो बिल्कुल भी नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी होती है मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, क्रेडिट रेगुलेशन से रेलिवेंट। तो यहाँ पे ऐसा कोई तस्करा नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन जो हमारे पास ऑप्शन डी है वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो अच्छा, यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिया था, लेकिन क्रॉस का मतलब था कि मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है, नो। सो मॉनेटरी पॉलिसी इसके अंदर नहीं है, सो डी ऑप्शन हो जाएगा। Question number 28 says which combination of initial equilibrium and supply side policy is likely to be least effective? ठीक है, least, most, not correct, इस तरह की चीजों को जनरली वो बोल्ड भी कर देता है एग्जामिनर। इनमें से कौन सी चीजें जो लीस्ट इफेक्टिव होगी? फॉर व्हाट? व्हेन अटेम्प्टिंग टू इंक्रीज रियल आउटपुट, गवर्नमेंट रियल आउटपुट इंक्रीज करना चाहती है, कौन सी पॉलिसी है जो सबसे ज्यादा इनइफेक्टिव होगी या लीस्ट इफेक्टिव होगी, जिसे कह रहे हैं? सो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर है, इनिशियल इक्विलिब्रियम रियल आउटपुट बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। और सप्लाई साइड पॉलिसी मेजर एबोलिशन ऑफ नेशनल मिनिमम वेज। तो मिनिमम वेज अगर आप कम करेंगे तो लोगों की इनकम नीचे आ जाएगी, रियल जीडीपी कम हो जाएगा। ठीक है, और ऑलरेडी अगर आप बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट है तो सप्लाई साइड पॉलिसी आपकी जो है वो लीस्ट लाइकली है कि आपको फायदा दे उतना। ठीक है, बाकी सारी ऑप्शन से मोस्ट लाइकली है कि आपको आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगी। सो ज़्यादा लीस्ट इफेक्टिव होगी हमारे पास ऑप्शन ए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 29 says the government aims to reduce unemployment through expansionary fiscal policy. expansionary fiscal policy होती है जब गवर्नमेंट टैक्स कम कर देती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है। एंड बोरोज मोर फ्रॉम कमर्शियल बैंक, फंड्स जो है वो कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट ज़्यादा लेना शुरू कर देती है। इंक्रीजिंग इट्स बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि उसको ज़्यादा पैसा चाहिए, तो इसलिए वो कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट लोन्स लेना चाहती है ताकि इन एक्सपेंडिचर्स को पूरा कर सके, क्योंकि टैक्सेस ऑलरेडी उसने कम किए हुए हैं। अब पैसा उसे कहाँ से मिलेगा? कमर्शियल बैंक से लोन की फॉर्म में मिलेगा। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट? इसका रिजल्ट क्या होगा? इट विल लीड टू एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, जब फंड्स गवर्नमेंट बैंक कमर्शियल बैंक से उठाना शुरू कर देती है तो डिमांड फॉर फंड्स बढ़ जाएगी, और एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर लोन्स जब बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट बैंक्स ऑटोमेटिकली बढ़ाते जाएंगे प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए, तो इंटरेस्ट रेट हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इससे लाइक क्राउडिंग आउट भी हो जाती है, एक टेक्निकल टर्म है क्राउडिंग आउट, लेकिन आपको अगर इसके बारे में नहीं पता तो कंफ्यूज ना हो, ये लाइक A2 का कंटेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 says के a government wants to use an expansionary monetary policy। monetary policy सेंट्रल बैंक बनाता है,
और गवर्नमेंट की के अंडर ही आता है सेंट्रल बैंक। तो इसमें सेंट्रल बैंक जब एक्सपेंशनरी यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना चाहती है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? व्हाट शुड द गवर्नमेंट इंक्रीज? क्रेडिट रेगुलेशंस इंक्रीज करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अगर क्रेडिट रेगुलेशंस इंक्रीज करेंगे तो लोग लोन ही नहीं ले सकेंगे। क्रेडिट रेगुलेशन बेसिकली लोन लेने के प्रोसेस को कहते हैं। अगर लोन लेने का प्रोसेस आप इंक्रीज करते जाएंगे, कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे, तो एक्सपेंशन नहीं आएगी इकोनॉमी में। एक्सचेंज रेट इंक्रीज करने से भी नहीं आएगी, और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने से भी नहीं आएगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगी, इकोनॉमिक एक्सपेंशन कम हो जाएगी, कंजम्पशन भी कम होगी लोगों की। मनी सप्लाई इंक्रीज करनी चाहिए। मनी सप्लाई इंक्रीज करने को एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। देखिए, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होता है कि मनी सप्लाई बढ़ा दें, इंटरेस्ट रेट कम कर दें, और क्रेडिट रेगुलेशंस को इजी कर दें, लूज कर दें या हटा दें उनको, रेगुलेशंस को इजी कर दें। और मनी सप्लाई तो मैं बता चुका हूँ। और एक्सचेंज रेट की वैल्यू को कम कर दें, एक्सचेंज रेट को कम कर दें। तो ये दिस इज बेसिकली एक्सपेंशनरी पॉलिसी। अगर इसको रिवर्स करेंगे तो वो दिस इज एक्सपेंशनरी पॉलिसी, अगर रिवर्स करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी बन जाएगा। ठीक है बेटा, सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेसन। और अगर किसी भी क्वेश्चन के बारे में फर्दर कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में लिखें, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे रब्ता कर सकते हैं, +923334429673। और इसके साथ लाइक ऑनलाइन क्लासेस भी मेरी कंटिन्यूड है। अगर आप लोगों ने क्रैश कोर्स ज्वाइन करना हो, 1 अप्रैल से जो है वो पास्ट पेपर सेशन में मैं स्टार्ट करूँ, सो यू कैन ज्वाइन दैट ऑनलाइन। और अगर फेस टू फेस आप इस्लामाबाद रावलपिंडी से फेस टू फेस ज्वाइन करना चाहें तो F8 में हमारी अकेडमी है, वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज इट फॉर टुडेज लेसन। होप you understand that. If you did, then thumb up and subscribe to this channel as well, because this channel is going to help you out for next 2 years. So see you in the next video. Allah Hafiz.